السلام علیکم ناظرین، 4 خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائنز۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ ضیاء انکلیو، کیو میکس سفائر، ساجد ریزیڈینسی، کیو میکس مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، ایم کے ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامارن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو، 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کی آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد کے قریبی حسین مناظر میں چیوڑلہ کے دل میں ایک بے مثال جگہ کیو میکس فارم ہاؤس، تلنگانہ کا سب سے بڑا باکس کرکٹ گراؤنڈ، 50 سے زیادہ سپورٹس ایکٹیویٹیز، ہر عمر کے لوگوں کے لیے تفریح کا بہترین انتظام، صرف ایک نہیں 2 شاندار سوئمنگ پولز، انڈور اور آؤٹ ڈور پلے ایریاز، شادی ہو، انگیجمنٹ، سانچک مہندی یا برتھ ڈے پارٹی، کیو میکس فارم ہاؤس ہر ایونٹ کے لیے بہترین تحفظ اور شاندار سیٹ اپ دیتا ہے۔ 500 مہمانوں تک کے لیے فل کراکری سیٹ اپ اور 2 الگ کچنز، ہمارا سپریٹ BBQ سیکشن آپ کے مہمانوں کے لیے خاص، 9 آرام دہ کمرے، 3 بڑے ہالز۔ کیو میکس فارم ہاؤس، آپ کے خاص لمحوں کا بہترین پتہ۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت، 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر لمحے کے لیے جوہری لے کر آیا ہے وہ گہنے جو صرف پہنے نہیں جاتے بلکہ یادوں میں بس جاتے ہیں۔ گولڈ کی بات ہو، ڈائمنڈ کا چارم یا پلاٹینم کی شائن، جوہری ہے ہر خواہش کا جواب۔ جوہری صرف ایک شو روم نہیں، ایک مثال ہے خوبصورتی کی، بھروسے کی اور آپ کی پسند کی۔ چاہے شادی ہو، مہندی کا دن ہو یا کسی خاص پل کا اظہار، جوہری کے بنا ہر کہانی ادھوری لگتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے لیے خوبصورت گہنے، بائے جوہری گولڈ، ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، اپوزٹ انڈین بینک، جوہری روڈ، ٹورڈ 7 ٹومز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ پرائڈ انڈیا آپ کے لیے لائے ہیں ہائیڈرا، FTL اور بفر زون سے پاک پلاٹس، اسپاٹ رجسٹریشن کے ساتھ۔ آرکڈ ریزیڈنسی کی شاندار کامیابی کے بعد لائے ہیں آپ کے لیے آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، بالاپور میں فلی ڈیولپڈ گیٹڈ کمیونٹی سے جڑا وینچر، جس میں چلڈرنس پارک، لینڈسکیپ گارڈن اور مسجد جیسی بے شمار امینٹیز کے ساتھ اوپن پلاٹس دستیاب ہیں۔ سنتوش نگر سے صرف 10 منٹ کے فاصلے پر آرکڈ ریزیڈنسی فیز 2، where life comes alive۔ شدید بارش سے جانی و مالی نقصان نہ ہو، راحت کاری کے لیے ہر ضلع کو 1 کروڑ روپے جاری۔ کلکٹرز متحرک رہیں، ریاستی وزیر پی سرینیواس ریڈی کی ویڈیو کانفرنس۔ ماضی کے غدار، آج کے وفادار، آزادی کی تحریک میں حیدرآبادیوں کا اہم رول، عابد حسن سفرانی، مولوی علاء الدین، طور عباس خان، ثریا طیب جی، دوسروں کو خراج۔ سیمینار سے صدر مجلس کا خطاب۔ حمایت ساگر میں پانی کا انفلو، 9 دروازے کھول دیے گئے، ندی سے لگے نشیبی علاقوں کے مکینوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ چادر گھاٹ سے لگے علاقوں کا رکن اسمبلی احمد بلالہ نے کیا دورہ، راحت کاری کاموں کی نگرانی۔ اور محبوب نگر میں چہارشنبے کی رات ہوئی بارش سے سڑکیں بہہ گئیں، غیر معمولی نقصانات، 10 چرواہوں اور 800 سے زیادہ بھیڑ بکروں کو بچا لیا گیا۔ ریاست میں مزید بارش کی پیش قیاسی۔ اور ناظرین، پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔
वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि शदीद बारिश की वजह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए, इसलिए एहतियाती इक़दाम करें। सेक्रेटेरिएट में ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि शदीद बारिश से इंसानी जान और इमलाक का नुकसान न हो, इसके लिए ज़रूरी इक़दाम करें। वज़ीर मौसूफ ने इजलास में राहतकारी कामों के लिए हर ज़िले को 1 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि रुखसत पर जाने वाले ओहदेदारों और अमले को वापस तलब करें। उन्होंने कहा कि आइंदा 3 दिनों में ज़बरदस्त बारिश के पेश नज़र तमाम एहतियाती इक़दाम किए जाएं। वज़ीर मौसूफ ने मुख्तलिफ अज़ला के हालात से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने नशेबी इलाकों में हिफाजती इक़दाम के अहकाम जारी किए। वज़ीर मौसूफ ने GHMC में म्यूनसिपल कमिश्नर, ट्रैफिक पुलिस, मेट्रो, वाटर बोर्ड के ओहदेदारों ने कहा कि वो मसाइल की यकसुई के लिए काम करेंगे। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क की जिद्दोजहद आज़ादी में हैदराबादियों के रोल को नाकाबिल फरामोश करार दिया। उन्होंने रियासती हुकूमत से कहा कि वो तेलंगाना की तारीख को असर नौ मुदव्विन करने मौर्रिख कैप्टन डॉक्टर पांडू रंगारेड्डी की ज़ेर क़यादत काम की शुरुआत करे और इसके लिए दरकार रकम जारी करे। तेलंगाना काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के ज़ेर एहतमाम वो तहरीक आज़ादी के गुमनाम हैदराबादी हीरोज़ के उन्वान पर एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। नायब सदर नशीन रियासती प्लानिंग बोर्ड डॉक्टर G चिन्नारेड्डी और दीगर मौज़ज़ीन इस तकरीब में शरीक थे। सदर मजलिस ने कहा कि जिनका मुल्क की आज़ादी की तहरीक में कोई रोल नहीं था, वो खुद हुब्बुल वतन होने के दावेदार बन गए हैं, जबकि जिन्होंने मसाइब झेले, अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी, उनको फरामोश किया जा रहा है। उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी साथी हैदराबादी आबिद हसन सिफरानी के अलावा मौलवी अलाउद्दीन, तुराबास खान, सुरैया तैयब जी, हयात खान, रोहीला पठान, मियाँ साहब कुर्द, रामजी गोंड, शेख अली अरब, पंच तीरथ, जहांगीर खान, सैयद अहमद जयदा खान, यूसुफ महर अली और कई नामालूम हैदराबादियों के नाम गिनवाए जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए अजीम कुर्बानियाँ दीं। मौलवी अलाउद्दीन ने 30 साल काले पानी की सज़ा काटी और वहीं इंतकाल कर गए। तुराबास खान, हयात खान और कई दूसरों ने जानों की कुर्बानी दी। उन्होंने कहा कि माजी के गद्दार आज खुद को वफादार करार देते हैं और हकीकी वफादारों को गद्दार समझते हैं। यूसुफ महर अली ने हिंदुस्तान छोड़ दो और आबिद हसन सिफरानी ने जय हिंद का नारा दिया, जबकि सुरैया तैयब जी ने मुल्क के लिए तिरंगा दिया। डॉक्टर B चिन्नारेड्डी ने कहा कि आम तौर पर यह तासुर दिया जाता है कि मुल्क की तहरीक आज़ादी में आंध्रा वालों का रोल रहा और तेलंगाना खामोश था। उन्होंने तारीख के हवाले से कई मिसालें दी कि अहले हैदराबाद व तेलंगाना अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ तहरीकात में किसी से पीछे नहीं थे। मौर्रिख कैप्टन डॉक्टर पांडू रंगारेड्डी, रहमान गयूर, कौंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर विवेक ने भी मुखातिब किया। सदर तामीर मिल्लत ज़ियाउद्दीन नैयर भी शैनशीन पर मौजूद थे। मेरा मानना यह है कि जंगे प्लासी 1757 में शुरू हुई, पहली जंग आज़ादी 1857 में, फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में, फिर 42 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ और फिर 47 में तो फाइनल। और हर जगह पे आप देखेंगे कि इसमें मुसलमान, हिंदू, ईसाई सब लोग आगे थे इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। और ख़ास तौर से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप उन लोगों को पाएंगे जो काला पानी में थे 10 साल, मगर 6 मरतबा अंग्रेज़ों को लव लेटर लिखे कि मेरे को माफ़ कर दो। और जो साहब लिखे उनकी फ़ोटो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में है। तो हम वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़रूर रखिए उनकी फ़ोटो, मगर हम उनसे भी ये गुजारिश करेंगे कि मौलवी अलाउद्दीन जो 30 साल काला पानी
की जेल में थे 30 इयर्स, मामूली बात नहीं है, 30 साल थे, आप उनकी भी फ़ोटो लगा के रखिए, तो ये इंसाफ का तकाजा भी है। और इससे बेहतरीन मैसेज जाएगा अगर प्राइम मिनिस्टर अपने ऑफिस में मौलवी अलाउद्दीन की फ़ोटो को रखेंगे। मैं आपको उस मौलवी अलाउद्दीन के टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ख़ुद एक डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स है, जिसमें उन्होंने लिखा कि निज़ाम की हुकूमत में कौन लोग थे जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी जानों को दिए। उसमें एक हयात साहब है, हयात साहिब, ये कोप्पल डिस्ट्रिक्ट उस वक्त निज़ाम की रियासत में आता था। ये तो 1857 की जंग आज़ादी में इनको अंग्रेज़ों ने पकड़ा, कोर्ट मार्शल हुआ और तोप के सामने इनको रखकर उड़ा दिया गया था। कोप्पल उस वक्त रियासत हैदराबाद का हिस्सा था। जहांगीर खान रोहिला पठान है और पैगा के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले हैं। सन 57 की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया। ब्रिटिश रेसिडेंट कर्नल डेविडसन को 15 मार्च 1859 को मारने की कोशिश की। दीवान सालार जंग के जो सिपाही थे उनको ऑन द स्पॉट उनको गोली मारकर उनको ख़त्म कर दिए। मियाँ साहब खुर्द जो नारायण खेड़ मेदक डिस्ट्रिक्ट के हैं, वो रोहिला के ज़िम्मेदार थे। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सन 57 में हिस्सा लिया और वो रामजी गोंड के साथ थे, आदिलाबाद के रामजी गोंड के साथ थे और उनको मार दिया गया अप्रैल 9, 1860 को, जब वो गोंड के साथ मिलकर अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। एक पंचतन थे हैदराबाद के, अंग्रेज़ों की ब्रिटिश आर्मी में वो थे। बाद में वो इंडियन नेशनल आर्मी मलाया में उसको ज्वाइन किए। फिर बर्मा को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ गए और 1944 में म्यांमार में उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़कर अपनी जान दे दी। तो पंचतन साहब का भी ताल्लुक़ हैदराबाद से। फिर आप आ जाइए शेख अली अरब, ये बसमत ताल्लुक़ जो परभनी में आता, वहाँ पर इन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा लिया। अक्टूबर 1859 में इनको गिरफ़्तार किया गया और इनकी फांसी की सज़ा दी गई थी। ये इन लोगों का नाम कोई लेता नहीं है और बार बार हमको ये बताया जाता है कि बस एक मखसूस लोग थे जिन्होंने इस मुल्क को आज़ाद किया। तो हिस्ट्री को सेलेक्टिव तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता है। और ये मैं जो कुछ कोट कर रहा हूँ ये तो डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किताब से है। मजाक नहीं है, हमको ऐसी आज़ादी नहीं मिली। और आज जो लोग हुकूमत कर रहे हैं ये सबसे बड़े दगाबाज हैं, कोई ताल्लुक़ नहीं है इनका, सबसे बड़े झूठ बोलने वाले हैं। और ये जो आज़ादी हमको आज मिली है ये कुर्बानियों की बुनियाद पर मिली है और इन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। जहाँ पर और ऐसा पीरियड था कि जहाँ पे हर मज़हब पनप रहा था। अंग्रेज़ हाकिम थे मगर हर मज़हब इसलिए पनप रहा था कि सब मिलकर हमने इस मुल्क को आज़ाद करवाया। मगर आज अफसोस ये हो गया कि हम ऐसे वक्त में आ चुके हैं कि आपसे और हमसे पूछा जा रहा है तुम प्रूफ दिखाओ तुम इंडिया के हैं या नहीं। जब आबिद हसन सफरानी, ये मौलवी इस्माइल अलाउद्दीन, ये लोग अपना खून बहा रहे थे, अंग्रेज़ों के बनाए हुए कपड़ों को जला रहे थे, अपना कैरियर्स बर्बाद कर रहे थे, अपने जायदादों को इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बान कर रहे थे, अपनी दौलत को दे रहे थे, किस लिए कि हम सुकून से सांस ले सकें, हम इज़्ज़त से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। मगर आज हालात ये हो गए कि कोई डिमोनेटाइजेशन करके हमको लाइन में खड़ा कर दिया। अब हमको बोला जा रहा है कि KYC के लिए आप बैंक को चले जाओ अपनी इंडियननेस को प्रूव करने। अब SIR के ज़रिए सिटीजनशिप को प्रूव करना पड़ेगा। मैं कभी सोचता हूँ कि अगर ये लोग अगर ज़िंदा होते, आबिद हसन सफरानी साहब, मौलवी अलाउद्दीन साहब, तुरेबाज खान साहब, क्या करते थे होंगे ये लोग। मैंने
ایک اتنی افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کا آج ہم یہ حالات ہمارے ملک میں دیکھ رہے ہیں. بہرحال ہم کو اس ملک کی سب سے بڑی خدمت ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں, اور ان کی قربانیوں کو اگر ہم رائیگاہ نہیں جانا چاہتے تو ضروری ہے کہ ہم جدوجہد کریں, ہم لڑیں, اس ملک کو مضبوط بنائیں. وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ راہل گاندھی ووٹ چوری معاملے پر سپریم کورٹ نے جانچ کی ہدایت دی ہے. 65 لاکھ ووٹرز کے نکالے گئے ناموں کو ویب سائٹ میں درج کریں. ان ناموں کو نکالنے کی وجہ کیا ہے, اس کا خلاصہ کریں. نئے ووٹرز کا اندراج کرنے پر آدھار کارڈ سے مربوط کرنے کو لازمی بنایا جائے. سپریم کورٹ نے سوال کیا کہ اصل میں ووٹرز ناموں کا اندراج کس طرح کیا جا رہا ہے, اس کی وضاحت کریں. پونم پربھاکر نے کہا کہ سپریم کورٹ ان سوالات کا الیکشن کمیشن کو جواب دینے کی ہدایت دی ہے. پونم پربھاکر نے کہا کہ راہل گاندھی نے جو مسئلہ اٹھایا ہے وہ پورے ملک, عوام اور جمہوریت سے جڑا ہے. راہل گاندھی نے کہا کہ آدھار کارڈ کو ووٹ سے لنک کریں, ایک ووٹ ایک فرد طریقے کو رائج کریں. راہل گاندھی نے جو مطالبہ کیا ہے اس پر الیکشن کمیشن اپنا رد عمل ظاہر کرے. بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ رگھونندن راؤ نے کہا کہ قائد اپوزیشن و کانگریس کے پاس انتظامیہ کی کوئی عزت نہیں ہے, جو افسوس کی بات ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے رگھونندن راؤ نے کہا کہ راجیو گاندھی نے کہا تھا کہ بیلٹ پیپر کی وجہ سے کانگریس کو شکست ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ شاد نگر میں ای وی ایم کے ذریعے پہلا انتخاب منعقد کیا گیا. انہوں نے کہا کہ 1979 سے اب تک ای وی ایم کے ذریعے انتخابات منعقد کیے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کامیاب ہونے پر ای وی ایم رائٹ اور شکست ہونے پر ای وی ایم رانگ کہتے ہیں. باپ نے بیلٹ کو مسترد کرتے ہوئے ای وی ایم لایا تھا. انہوں نے کہا کہ رائے بریلی میں 2 لاکھ مشتبہ ووٹ دکھائی دیے. اس پر ہم نے کبھی الیکشن کمیشن سے شکایت نہیں کی ہے. انہوں نے کہا کہ ایک ہی فرقے کے 93,400 افراد نے وائناڈ میں ووٹ ڈالے. انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی بیرونی ایجنٹ کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن چکے ہیں. رگھونندن راؤ نے کہا کہ راہل گاندھی کو جان کا خطرہ ہے تو وہ کانگریس ہی سے ہے. حیدرآباد کے نواحی اور مضافاتی علاقوں میں بارش کی وجہ سے کئی تالاب اور کنٹے لبریز ہو گئے ہیں. حیدرآباد کے ذخیرہ آب حمایت ساگر میں مسلسل پانی کا انفلو جاری ہے. اس دوران محکمہ آبپاشی کی طرف سے حمایت ساگر کے 9 دروازے 4 فٹ تک کھول دیے گئے ہیں. حمایت ساگر سے 12,046 کیوزک پانی کا موسیٰ ندی میں اخراج عمل میں لایا جا رہا ہے. حمایت ساگر کی مکمل سطح آب 1,763.50 فٹ ہے, جبکہ موجودہ سطح آب 1,763.20 بتائی گئی ہے. عثمان ساگر کی سطح آب میں بھی اضافہ ہوا ہے. اس ذخیرہ آب کی مکمل سطح آب 1,790 فٹ ہے, جبکہ موجودہ سطح آب 1,785.40 فٹ ہے. انفلو 3,000 کیوزک بتایا گیا ہے. حمایت ساگر سے پانی کے اخراج کے تناظر میں موسیٰ ندی سے لگے تمام علاقوں کے مکینوں کو چوکس کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں بلدیہ کی طرف سے ایمرجنسی ہیلپ لائن نمبرز بھی قائم کیے گئے ہیں. ڈی سی ملک پیٹ کا نمبر 9154172353 اور ڈی سی گوشہ محل کا نمبر 6309920621 بتایا گیا ہے. صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی میں رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ حلقے کے عوام کے مسائل پر بروقت توجہ دے رہے ہیں. موسیٰ ندی میں پانی کے اخراج کے سبب چادر گھاٹ کے علاقے میں واقع محلہ جات موسیٰ نگر، ونائک ویدی، شنکر نگر کا انہوں نے دورہ کیا. بارش اور ندی میں پانی کے بہاؤ کے سبب جن مکینوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان کو راحت فراہم کی گئی. شنکر نگر کے مکینوں نے بتایا کہ اس علاقے کے 100 سے زائد خاندانوں کو رکن اسمبلی نے سعید آباد میں ڈبل بیڈ روم مکانات الاٹ کروائے. اب چند خاندان رہ گئے ہیں, انہیں بھی مکانات الاٹ کروانے کا تیقن دیا گیا. اس کے علاوہ اس علاقے میں نئی ڈرین لائن ڈالنے کے سبب اب گھروں کے اندر پانی داخل نہیں ہو رہا ہے. اس دورے سے قبل احمد بلالہ کی ہدایت پر نمائندہ کارپوریٹر ایس ایم ابرار نے موسیٰ نگر میں مقیم خاندانوں کو ندی کے پانی سے محفوظ رکھنے ان کا تخلیہ کروایا
और एक मुकामी कम्युनिटी हॉल में उन्हें मुंतकिल करवाया गया। रुकन असम्बली की जानिब से उन्हें ग़िज़ा और दीगर सहूलतें पहुँचाई जा रही हैं। पहले जो थे 100 चिल्लर मकाना जो पानी घुस जाता था पूरे मकानों में, बलाला साहब कोशिश करके सैदाबाग जो चंचलगुड़े के जो मकाना डबल बेडरूम के थे उसके अंदर दिलाए सब जनों को 100 चिल्लर मकानों को। अभी एक 6-7 मकाना है, अब उसको भी एक खरीद दिला दिए तो अच्छा है, मगर पहले से अब बहुत बेहतर है। पहले यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा ख़राब थे। यहाँ पे कम से कम 100 से 150 घर हर बरसात में यहाँ पे बहुत परेशानी थी। 100-150 घर में पानी घुस जाता था। और बलाला साहब के सामने हर वक्त बात आते गई। बलाला साहब की मेहनत की वजह से जो है ना वो लोग पूरों को यहाँ से हटा के सैदाबाग पे अल्हम्दुलिल्लाह कोई 50-60 किलोमीटर दूर नहीं, सैदाबाग सिटी के सेंटर में बलाला साहब की जिद्दोजहद से हुआ काम। 100-150 आदमी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े में है। अभी कुछ 6-8 घर है, इंशाल्लाह बलाला साहब के अभी आके देख के गए हैं, वो भी देख के इंशाल्लाह करा देता हूँ बोल के बलाला साहब वायदा करेगी। और ये ड्रेन का भी काम जो हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बलाला साहब की मेहनत है। पहले ये पानी जो आपको एक बार पीछे बताइए, आप तकरीबन कमर तक पानी आ रहता था, ऊपर 1 फीट पानी आपको नहीं दिखेगा। अब यहाँ पे बलाला साहब की मेहनत है ये सब। तेलंगाना हुकूमत ने नई गाड़ियों पर लाइफ टैक्स में इजाफा कर दिया है। हुकूमत की नई टैक्स पॉलिसी पर आज से अमल होगा। ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ियों पर टैक्स आयद किया गया है। नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ियों पर 18% और फर्स्ट ओनरशिप गाड़ियों पर 20% टैक्स का लुज़ूम किया गया है। इसके अलावा फैंसी नंबरों के हुसूल पर भी कीमत में इजाफा किया गया है। 9999 नंबर के लिए 1.5 लाख रुपए फीस रखी गई है। 1 और 9 नंबर के लिए 1 लाख रुपए फीस रखी गई है। गुज़िश्ता रात महबूबनगर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने गैर मामूली तबाही मचाई। सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं, आमदोरफ्त मुतासिर रही। कई मकामात पर सड़कों पर शिगाफ देखे गए। मुतल्लिका रुकन असम्बली श्रीनिवास रेड्डी ने देवटीपल्ली के अलावा दीगर मुतासरा इलाकों का दौरा किया। देवटीपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब तालाब का पानी सड़क पर बहने से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। रुकन असम्बली ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि आमदोरफ्त को बहाल करने के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं। रुकन असम्बली ने किसानों को यकीन दिलाया कि फसलों को हुए नुकसान की पाबजाई के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की जाएगी। दूसरी तरफ महबूबनगर जिले के मूसापेट मंडल के पोलकमपल्ली देहात में भी बारिश की वजह से तालाब के पास फंसे हुए 10 चरवाहों और 800 से ज्यादा भेड़ बकरों को महफूज निकाल लिया गया है। SDRF के अलावा दीगर बचाव की टीमों ने मुसलसल कोशिशों के बाद उन्हें पानी से बाहर निकाला और महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। हज हाउस में आज़मीन हज के लिए कुरानदाजी अमल में आई। इस सिलसिले में हज कमेटी के चेयरमैन मौलाना खुसरो पातशाह बियाबानी ने मीडिया को बताया कि कुरानदाजी में जायद 1,22,000 आज़मीन के नाम निकले हैं, जबकि जायद 1,94,000 दरख्वास्तें वसूल हुई थीं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना से जायद 11,700 दरख्वास्तें मौसूल हुई थीं, जिसमें 4,202 के नामों का ऐलान किया गया है। उन्होंने बताया कि आज़मीन हज को 20 अगस्त से पहले 1,52,300 रुपये में हेल्थ सर्टिफिकेट्स जमा करवाने होंगे। वक्फ बोर्ड की मुबैना लापरवाही से एक और जायदाद पर गैर मजाज कब्जे का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक गन फाउंड्री पर वाक़े मोइन मंजिल की आराजी साबिक सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की मियाद के दौरान लीज पर दी गई थी। जिस शख्स को आराजी लीज पर दी गई थी उसने दूसरे को आराजी फरोख्त कर दी और फिर खरीदने वाले ने इस आराजी को किसी और को फरोख्त कर दिया। इस दौरान वक्फ बोर्ड सोता रहा। मोइन मंजिल की आराजी पर तामीर भी शुरू कर दी गई है। जब वक्फ बोर्ड को इसकी इत्तला मिली तो ओहदेदार मज़कूर आराजी पहुंचे और अपना बोर्ड लगा दिया, लेकिन लैंड ग्रैबर्स ने इस बोर्ड को गिरा दिया। अब देखना यह है कि क्या वक्फ बोर्ड आराजी का तहफ़्फ़ुज़ कर पाता है या नहीं। कमिश्नर हाइड्रा AV रंगनाथ ने रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज के हमरा जुमेरात को हल्का याकूतपुरा के मरके नाला के अलावा दूसरे नालों की सफाई के कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि सिर्फ नालों की सफाई का काम हाइड्रा के सुपुर्द किया गया है। उन्होंने बताया कि मौसर तरीके से नालों की सफाई का काम हो रहा है। हाइड्रा के ओहदेदार बाला गोपाल की निगरानी में सफाई के काम किए जा रहे हैं।
नालों की सफाई का 100% काम मुकम्मल किया जाएगा। दूसरी तरफ हाइड्रा के ओहदेदार बालागोपाल ने बताया कि नालों की मुकम्मल सफाई तक मशीनों को नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने बताया कि कमिश्नर एवी रंगनाथ ने हिदायत दी है कि नालों की मुकम्मल सफाई होनी चाहिए। जीएचएमसी ने हाइड्रा की टीम से डिसिल्टिंग का काम को शुरू किया है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एडवांस मशीनरी के साथ नालों की क्लीनिंग हो रही है। उसके नालों के इंस्पेक्शन के लिए हाइड्रा कमिश्नर साहब आज आए थे याकूतपुरे के अंदर, जो मुर्गी नाले की क्लीनिंग हो रही है वो देखने के लिए। उन्होंने उसके साथ उनकी टीम, तो हाइड्रा की जितनी टीम साफ़ कर रही है अल्लाह के फजल से, उसका इंस्पेक्शन के लिए आए थे। और वो सिर्फ और सिर्फ नाला क्लीनिंग के लिए हमने हाइड्रा को ये काम सौंपे थे जीएचएमसी ने, उसकी क्लीनिंग का काम देखने के लिए आए। और अल्लाह के फजल से बेहतरीन अंदर से डिसिल्टिंग हो रही है। जितना पुराना पत्थर जो चीज़ें हैं वो अंदर डिटेली क्लीन कर रहे हैं। और हाइड्रा की टीम जो है, बाला गोपाल साहब यहाँ के ज़िम्मेदार है, उन्होंने ये पूरा क्लीनिंग करा रहे हैं। पूरा मुकम्मल हम डिसिल्टिंग 100% बिल्कुल तल दिखे तक, यानी पूरा बेस तक डिसिल्टिंग कराना चाहते हैं। नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की निगरानी के अंदर अब की मर्तबा पूरा नाला, चाहे वो मुर्गी नाला हो, जो भी नाले हो, उसकी प्रॉपर डिसिल्टिंग करने के लिए हाइड्रा का पूरा सपोर्ट है हमारे को। इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ और सिर्फ डिसिल्टिंग काम के लिए ही हाइड्रा की टीम यहाँ पर मौजूद है। तो अपने एमएलए साहब और वसी और समीना मैडम दोनों भी आके साहब बोलने से यहाँ मशीना भेजे। अब उसके तरीके से, क्योंकि 2-3 सेंटीमीटर बारिश हुआ तो भी तालाब कट्टा पूरा इनंडेशन होता था, वो पूरा सिल्टी की वजह, सिल्ट वजह से जस्ट 2 मीटर से 1 फीट पानी जाता था पूरा। बाकी का पूरा मोर देन 5 फीट सिल्टी था, वो सिल्ट पूरा निकाले तो जो इनंडेशन कंप्लीट होता। नहीं तो अगर अदरवाइज अभी ज़्यादा बारिश हुई तो पूरी कॉलोनी पूरी इनंडेशन होती बोल के बोले तो साहब रेडी होके वही, जब तक नाला पूरा क्लीन नहीं होता जब तक यहाँ मशीनरी यहाँ ही रहेंगी। मे भी अब मौसम के हिसाब से, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो तो मशीनें नहीं चलती, बारिश कब कम है तो बस निकाल के वो डिसिल्टिंग भी पूरा कचरा भी निकाल देंगे। बहादुरपुरा हुदूद के असद बाबा नगर किशन बाग में मूसा नदी से लगे अवाम को भी चौकस किया गया है। रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर पुलिस, बलदिया और रेवेन्यू हुकाम के साथ मिलकर नदी से लगे इलाकों का दौरा किया गया। हिमायत सागर से पानी के अखराज को देखते हुए इलाके के वकीलों को खबरदार किया गया है और उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का मशवरा दिया गया है। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर्स हुसैनी पाशा और मोहम्मद खादर भी मौजूद थे। हैदराबाद की बेगम बाजार में बोसीदा इमारत मुनहदिम हो गई है। इस वाक़े के वक्त मुतासरा इमारत में कोई मौजूद नहीं था, इसलिए कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। यह भी बताया गया है कि बलदिया की तरफ से पहले ही इमारत की खस्ताहाली को देखकर इसे मुनहदिम करने की नोटिस दी गई थी। ताहम इमारत के मालिक ने इस नोटिस को नज़रअंदाज कर दिया था। बेगम बाजार में ऐसी कई बोसीदा इमारतें मौजूद हैं जिसमें अभी भी कारोबार किया जा रहा है। मुकामी अवाम का कहना था कि इस तरह की बोसीदा इमारतों को फौरी मुनहदम किया जाना चाहिए, क्योंकि गुंजान आबादी वाले इलाकों में मुस्तकबिल में ये खतरे का बाइस बन सकते हैं। तेलंगाना महबूबनगर जिले के देवतीपल्ली देहात में कानगी बस सड़क के बह जाने से पानी में गिर गई। ये बस कानगी कंपनी की बताई गई है। कंपनी के मुलाजिमीन बस में सवार थे। यह हादसा कौमी शाहरा 44 के पास पेश आया। शदीद बारिश की वजह से सड़क पानी में बह गई थी और इस दौरान बस नीचे गिर गई। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। राजेंद्र नगर टीपुकान ब्रिज से गुजरने वाली मूसा नदी में एक शख्स फंसा हुआ देखा गया है। बताया गया है कि मुतासरा शख्स पानी के तेज बहाव में दरख्त को पकड़ा हुआ है। मुकामी अवाम ने बहते पानी में फंसे शख्स को देखकर पुलिस को इत्तला दी। राजेंद्र नगर पुलिस, डीआरएफ और फायर ब्रिगेड का अमला मुकामी वाक़या पहुंच गया है। ये मिलिट्री इलाका है। मुकामी फौज के बाज़ ओहदेदार भी मुकामी वाक़े पर पहुंच गए हैं। आखिरी खबरें मिलने तक भी मुतासरा शख्स को निकालने के लिए कोशिशें जारी थीं। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स की तकसीम जारी है। जुमेरात को रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सईदाबाद, अंबरपेट और चार मीनार मंडल के तहत मंजूरा 184 चेक्स तकसीम किए।
इन चेक्स की जुमला मालियत 1,84,21,344 रुपये बताई गई है। इस्तेफादा कुनिंदगान का ताल्लुक सईदाबाद की रोज कॉलोनी, कोसल बस्ती, संकेसर बाजार, कदीम मलकपेट के पद्मानगर, कमल नगर, रसूलपुरा, आजमपुरा, चंचलगुड़ा, शाह कॉलोनी, बागे जहारा, उस्मानपुरा, कटलगुड़ा और फरत नगर से बताया गया है। इस्तेफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया है। आज अंबरपेट, चार मीनार और सैदाबाद मंडल के जुमला 184 लोगों में शादी मुबारक कन्या लक्ष्मी के चेक तकसीम किए गए हैं, जिसकी लागत 1,85,00,000 के करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह हर महीना जैसा जैसा हम फास्ट तरीके से सैंक्शन करा के लोगों के चेक तकसीम कर रहे हैं। हल्का याकूतपुरा की 236 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में भी शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए गए। रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने बताया कि 2,36,27,000 रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। उन्होंने बताया कि माबाकी चेक्स की भी जल्द तकसीम अमल में आएगी। हल्का याकूतपुरा के कॉरपोरेटर्स भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग कादरी ने एडिशनल कमिश्नर सिटी पुलिस लॉ एंड ऑर्डर विक्रम सिंह मान से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्तलिफ उमूर पर बात की गई। उन्होंने बताया कि जलपल्ली के तालाब का पानी उबलकर करीबी इलाकों तक पहुंच रहा है। उन्होंने इस सिलसिले में ट्रैफिक के लिए मुनासिब इक़दाम करने के लिए कहा। अलावाजी मिर्जा रहमत बेग ने पुराना पुल की पार्टी समाज तंजीम को 15 अगस्त को चार मीनार से जलपल्ली तक तिरंगा रैली निकालने की इजाज़त दिलाई। उन्होंने बारिश के दौरान अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो उसके लिए पुलिस को चौकस रहने का मशवरा दिया। रहमत बेग ने शास्त्रीपुरम के इलाके सलमान नगर का दौरा किया। दौरे के दौरान मीर आलम तालाब, 9 नंबर पहाड़ी और सिख छावनी का अहाता करके ज़ैर इल्तिवा कामों का जायजा लिया, जहां 2 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती काम किए जा रहे हैं। उन्होंने नालों की सफाई और दूसरे कामों को जल्द करवाने की हिदायत दी। इस मौके पर सरकारी महकमे जात के ओहदेदार रुकन बलदिया नवाजुद्दीन के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने सदर मजलिस की हिदायत पर टोली चौक की पुल के करीब बॉक्स टाइप ड्रेन के कामों का मुआयना किया। बारिश के पानी की फौरी निकासी के लिए नए मेन होल्स और दूसरे तामीराती काम किए जा रहे हैं, जिससे आवाम को राहत होगी। बाद में कौसर महिउद्दीन ने NP3 पाइपलाइंस, VDCC रोड्स और सीवरेज लाइंस के कामों का मुआयना किया, जो लंगर हाउस और गोलकंडा के अतराफ वकनाफ के इलाकों में किए जा रहे हैं। इस मौके पर GHMC के ओहदेदारों के अलावा अराकीन बलदिया, मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, वजीउज़्ज़मा, अमीरुद्दीन के अलावा मजलिस की इब्तिदाई सुदूर और मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने सुल्तान बाग में रेवेन्यू डिपार्टमेंट और महकमे औकाफ की जानिब से किए जाने वाले सर्वे को रुकवा दिया। इस सिलसिले में सदर मजलिस को इत्तला मिली तो उन्होंने मोहम्मद मुबीन को वहां रवाना किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि मुकामी मंदिर का रकबा 480 गज है, जबकि रिकॉर्ड में 3 एकड़ 18 गुंटे अराजी मंदिर की बताई जा रही है। उन्होंने बताया कि मंदिर के करीब लोग अरसे दराज से रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि हुक्काम ने 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट तलब की। वक्फे से सर्वे की वजह से मकीनों में दहशत का माहौल है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में मुताल्लिका तहसीलदार बंडलागुड़े को भी वाकिफ करवाया गया है और कहा गया कि इस रिकॉर्ड को कलेक्टर एंडोमेंट और 1 कॉपी मजलिस को भी दी जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से राशन कार्ड के हुसूल के लिए ज़र इल्तिवा दरख्वास्तों से मुताल्लिक रहनुमाई की जा रही है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बताया है कि राशन कार्ड के लिए जिन्होंने दरख्वास्तें दाखिल की हैं और उनका स्टेटस पेंडिंग बता रहा है, वो दारुस्सलाम से रुजू हो सकते हैं। इस सिलसिले में दरख्वास्त गुजारों की रहनुमाई की जाएगी। राशन कार्ड्स का भी काम चल रहा है। अगर किसी जो लोग राशन कार्ड के लिए अप्लाई करे हैं और स्टेटस के अंदर उसका पेंडिंग बता रहा है, तो वो दारुस्सलाम में या हमारे से रुजू हों ताकि हम उसकी यकसूई करा सकें। बोराबंडा पुलिस स्टेशन हुदूद के खानगी स्कूल में तालिब इल्म को टीचर की तरफ से मुबैना मारपीट का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक पहली जमात के तालिब इल्म को गलत किताब लाने पर मॉडर्न सिटी स्कूल की एक टीचर ने सजा दी।
घर आकर तालिब इल्म ने अपने वालिदैन से शिकायत की। वालिदैन ने बोराबंडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है और स्कूल इंतजामिया से टीचर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। नूरी नगर का साकिन 19 साला मोहम्मद मुजम्मिल जुमा से लापता बताया गया है। अफराद खानदान ने बताया कि मुजम्मिल जुमा की नमाज के लिए गए थे लेकिन घर वापस नहीं लौटे। अगर किसी को नजर आ जाए तो बनलागुड़ा पुलिस या फिर फोन नंबर 7386654690 पर इत्तला दी जा सकती है। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, एमके टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। शदीद बारिश से जानी व माली नुकसान न हो, राहत कारी के लिए हर जिले को 1 करोड़ रुपए जारी। कलेक्टर्स मुतहर्रिक रहें। रियासती वजीर P श्रीनिवास रेड्डी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। माजी में गद्दार, आज के वफादार। आज़ादी की तहरीक में हैदराबादियों का अहम रोल। आबिद हसन सफरानी, मौलवी अलाउद्दीन, तुरबास खान, सुरैया तैयब जी और दूसरों को खिराज। सेमिनार से सदर मजलिस का खिताब। हिमायत सागर में पानी का इनफ्लो, 9 दरवाजे खोल दिए गए। नदी से लगे नशेबी इलाकों के मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। चादर घाट से लगे इलाकों का रुकन असम्बली अहमद बलाला ने किया दौरा। राहतकारी कामों की निगरानी। और महबूबनगर में चारशंबे की रात हुई बारिश से सड़कें बह गईं। गैर मामूली नुकसानात, 10 चरवाहों और 800 से जायद भेड़ बकरों को बचा लिया गया। रियासत में मजीद बारिश की पेश कयासी। और नाज़रीन, इसी के साथ
4 TV خبرنامے کا یہیں اختتام ہونا چاہتا ہے. مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. دیکھتے رہیں 4 TV. خدا حافظ.